मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखावतांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपिशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी तुम्हें स्टार्ट कर दूं? Yes, Mataji, please. Hare Krishna. Then we pranam to all the devotees assembled over here. Please forgive me अगर मैं कुछ गलत कहूँ तो I have a very small intelligence. I don't understand things very well and very easily. I have tried my best to understand the story of Tulsi Saligram Viva, and my reference was Amrendra Prabhu's lecture, Amala Swami's lecture, and a couple of written blogs from ISKCON Desiratory. So I will be talking in both Hindi and English because that's how I'm comfortable, and I assume everybody also will understand that. So we start with Tulsi Maharani. First question is just for a basic start. Who is Tulsi Maharani? Tulsi Maharani is somebody we offer our diyas to every day in the morning aarti when we do Tulsi prayers. Tulsi is the Tulsi mala that we wear, the kanthi mala around our neck, and also any food that we offer to Krishna is never without Tulsi. If it is offered without Tulsi, it is not accepted by Krishna. So we will start with Tulsi Shaligram Vivaha Leela, and then we will go on the glories of Tulsi Maharani. So first thing, everything is done in different kalpas, different leelas have taken place. And in the kalpa that we come into, this is what happened. And ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है. So once Narad Muni was asking questions to Narayan, and he asked this question, how did Tulsi Maharani become your wife? And how did she get such a high position? इतना बड़ा ओधा उन्हें कैसे मिला और वो आपकी पत्नी रूप में कैसे आई? And on that, Narayan started explaining. So, सबसे पहले to understand who is Tulsi Maharani, first we have to know Tulsi Maharani is actually Vrinda Devi in Goloka Vrindavan. Her name is not Tulsi over there, and her job is to create beautiful places for beautiful pastimes of Radha and Krishna. So under her directions come all the birds, the plants, the trees, everybody follow her directions. And as per her instructions, they set up a place for Radha Krishna's pastime. And that is prime job of Vrinda Devi. So there up in Goloka Vrindavan, Radharani is the most prime gopi. She is the most exalted devotee. And only she has the right to introduce all the other gopis to Krishna, and only then they have a conversation with Krishna. This is like a basic etiquette that is followed over there, and which is, we assume that should be followed here in material world also. If we have to approach somebody, we first try to go through their loved ones or through their secretary or whatever. We don't directly go and approach a very high personality. We have to go via somebody. So until unless Radharani does not give the permission, the gopis do not talk directly to Krishna. So one day,
Vrinda Devi was was decorating the forest because Radharani and Krishna were supposed to meet there. So while she was decorating, suddenly Krishna appears in front of her, and when she looks at Krishna in ecstasy, she faints. Like, and then Krishna helps Vrinda Devi to get up, and then they talk to each other. And when Radharani realizes this, that Vrinda Devi just fainted like this, and she spoke to Krishna without her giving the permission, she was actually very angry. And in that anger, she told Vrinda Devi, "This is not how people over here behave. This is the way how manmoji people behave." And manmoji people, like जो अपनी मनमानी करते हैं, वैसे लोग जो अपने senses के control में रहते हैं, basically वो लोग material world में होते हैं. तो this is not how you should be behaving. She gets very upset and she says, "You go in that material world only because that's where you should be with this kind of attitude. And when you stay there, do a lot of austerities, बहुत तपस्या करना, become pure, and then come back. Only when you're pure, I will take you back." And Krishna was also standing there and he was also listening. And he said, Vrinda Devi, he instructed Vrinda Devi that when you go down, do a lot of tapasya and ask for Vishnu to be your husband. And Vrinda Devi follows the instructions and goes away from there. Now, where did Vrinda Devi get married and all? Before coming on to that thing, first we will see how and in which family was Vrinda Devi born. So there was a lineage of devotees who were actually worshippers of Lord Vishnu. Among those, there was Varun Dhwaja, and the next generation was Rishabh Dhwaja. Rishabh Dhwaj was a person who was actually one-pointed devoted to Lord Shivji. That is not any wrong thing or an offense. But at that same time, he would say, he would badmouth about the other Devi Devtas, like there are so many other Devi Devtas, Indra, Surya, Chandra. So he would say wrong things about them, demean them, and also about Lord Vishnu. Um, but he was very, very dedicated and a very good devotee of Lord Shiva. Lord Shiva used to see this behavior and he used to get really, really pleased. And he used to really love his devotee for that. And I'll repeat his name. His name was Rishabhvaj. So, because of that beautiful action, that beautiful bhakti that Rishabhvaj had for Lord Shiva was unable to see the misbehaving attitude he had for other Devi Devtas and Lord Vishnu. So Lord Shiva also used to reside in his palace, in his mahal. He was a good king. He was a good king, like wealthy person, but his attitude was not very good to other Devi Devtas. Everybody, all the other Devi Devtas used to be scared to tell him anything because they were scared that because of telling him anything, Lord Shiva might get angry. And if Lord Shiva gets angry, you know what happens. So they would just keep their mouths quiet and they would feel bad, hurt, but there was no reciprocation. But one day, कहते हैं ना पानी सर के ऊपर गुजर गया, so he started condemning all the Devi Devtas and Surya Devta could not take it anymore. He back answered and he cursed him actually, saying that Jao tum daridra ho jao. May you not have any more wealth. May you not have so many riches anymore. And the moment he cursed him, Rishabhaj became in that form, and Shivji, Lord Shivji, heard it and he realized it that his great devotee was being cursed. And out of anger, he sat on his Nandi bell and rode towards Surya Devta. Surya Devta got very scared, rushed to his father, Kashyap Muni, and he told everything what has happened to Kashyap Muni. And then they both together went to Lord Brahma. And when they went to Lord Brahma, they नतमस्तक होके उन्होंने प्रणाम किया, कहा we need जी हमारे पीछे आ रहे हैं हमें मारने के लिए. And Lord Brahma ने कहा कि इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मुझे भी कुछ करना नहीं आएगा, सिर्फ विष्णु भगवान ही इस समस्या को सुलझा सकते हैं.
तो वो सब लोग संग में होके विष्णु भगवान के पास गए। जब वो विष्णु भगवान के पास गए तो वहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर था, बहुत शांत था, शीतल था। पर बहुत डरे हुए थे सूर्य देवता, और उन्होंने डर में अपनी सारी व्यथा बताई कि उनके साथ क्या हुआ है। तब विष्णु भगवान ने कहा कि मेरे पास जो भी आता है वो भय से मुक्त हो जाता है, तो तुम भी अभय बनो। मैं हूँ, मैं देख लूंगा। फिर जब लॉर्ड शिव जी आते हैं, तब वो भी इतने सुंदर वातावरण को देख के, इतना शीतल माहौल था सब जगह, वो शांत हो जाते हैं। लॉर्ड शिव विष्णु को देख के वो उनको भी दंडवत करते हैं और बोलते हैं कि देखो इन्होंने क्या किया मेरे भक्त के साथ में। तो फिर भगवान विष्णु ने कहते हैं कि जो होना था वो हो गया, क्योंकि यहाँ पर तुम लोग कुछ समय से मेरे पास में हो, कुछ समय यहाँ पर बीता है, पर पृथ्वी लोक पर तो हजारों साल बीत गए हैं। उसके बाद में इन लोगों के कई लीनिएजेस आए हैं और गए हैं, दरिद्रता में ही आए हैं, दरिद्रता में ही गए हैं। फिलहाल धर्म ध्वज उनके लीनियज से है, पर अभी अभी माँ लक्ष्मी ने उन्हें वरदान दिया है, क्योंकि वो बहुत अच्छे भक्त हैं विष्णु के। तो माँ लक्ष्मी ने उन्हें उसी वक्त जो वरदान दिया होता है वो ये होता है कि वो वापस से उन सारी सुख समृद्धि उनके पास आ जाए, और माँ लक्ष्मी स्वयं अपने आप को एक्सपैंड करके उनकी वाइफ के गर्भ में अभी जाने वाली है। उनकी वाइफ का नाम होता है धर्मध्वज, वो व्यक्ति है, और उनकी वाइफ का नाम होता है माधवी। तो माधवी के गर्भ में जाने वाले होते हैं। तो ये बात सुन के सब लोग शांत हो जाते हैं, सूर्य देवता को चैन की सांस मिलती है। शिव जी बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई उनके डिवोटीज के लीनिएज में वापस से सुख समृद्धि आ गई है। फिर माधवी जो उनकी वाइफ है, उनके गर्भ में एक्सपेंशन ऑफ लक्ष्मी माँ रहते हैं। तो काफी सेलेस्टियल इयर्स तक वो माधवी रानी प्रेग्नेंट रहते हैं। उसके बाद में जब उनको बेटी पैदा होती है, तो वो बेटी का नाम वो लोग रखते हैं तुलसी। तुलसी का मतलब होता है जिसकी तुलना किसी के भी साथ में नहीं की जा सकती। वो इतनी अतुल्य है कि उसकी किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी। उनके काले घने इतने सुंदर बाल थे, उनकी आंखों में इतनी बड़ी बड़ी थी, उनके शरीर में इतना तेज था, जिसकी वजह से उनका नाम तुलसी पड़ा। बहुत ही अच्छी बेटी थी वो, और उनके लिए कहा गया था कि ये बहुत अच्छी डिवोटी भक्त बनेगी विष्णु भगवान की। फिर जब वो बड़ी होती हैं तुलसी महारानी, तब फिर वो बद्रीनाथ जाते हैं एंड वो वहां पे खूब तपस्या करते हैं। 100,000 years वो तपस्या करते हैं। जब वो तपस्या करते हैं तो वो 40 years वन में रहकर, 40 साल वन में रहकर सिर्फ फल फूल पानी इत्यादि का सेवन करते हैं। उसके बाद में 30 साल तक वो सिर्फ जो झाड़ से जो पत्ते गिरते हैं सूखे, हम सब लोग देख रहे होंगे, हमारे आगे भी फॉल चल रहा है, तो उस प्रकार के पत्ते खा के रहते हैं। फिर 20 years वो सिर्फ पानी के ऊपर रहते हैं, और लास्ट के 10 years वो सिर्फ एक टांग पे खड़े हुए रहते हैं। 10 years एज इन 10,000 years, आई एम सॉरी, 40,000 years, 30,000 years, 20,000 years एंड 10,000 years, इस प्रकार से बाइफिकेशन है। इस प्रकार से उन्होंने 100,000 years तपस्या की, बहुत कड़ी तपस्या की थी। तो लॉर्ड ब्रह्मा उनसे बहुत खुश होते हैं और वहां पे आते हैं। खैर जब वो ये तपस्या कर रहे थे, तो सारे देवी देवता जो होते हैं, जनरली कोई तपस्या करते तो घबरा जाते कि अब ये क्या मांग लेंगे। उस प्रकार उन लोगों ने भी काफी अड़चन पैदा करने की कोशिश की थी, पर तुलसी महारानी वॉज वेरी दृढ़ इन हर निश्चय। वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी तपस्या कंप्लीट की थी। तो फिर लॉर्ड ब्रह्मा उनके सामने आए थे और उन्हें कहा कि आपको जो मांगना है आप मुझसे मांगो, मैं बहुत खुश हूँ। तो तुलसी महारानी कहती है कि मुझे लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु से शादी करनी है, मुझे वो अपने पति के रूप में चाहिए। तो जब लॉर्ड ब्रह्मा ये सुनते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, पर उससे पहले तुम मेरी बात सुनो। तो वो कहते हैं कि जब तुम गोलोक वृंदावन में थी, तब वहां पे सुदामा भी थे, जो एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा है। सुदामा तुमको कभी कभी देखा करते थे, क्योंकि उनके मन में इच्छा रहती थी कि उनकी शादी तुमसे हो पर उन्होंने कभी ये बात व्यक्त नहीं की। फिर बाद में उनको किसी प्रकार से एक श्राप मिला था राधा रानी के द्वारा,
जिसके वजह से वो अभी फिलहाल इस पृथ्वी लोक पे एक डीमन के स्वरूप में है और उनका नाम है शंखचूड़। साइमल्टेनियसली तुम्हारे संग संग वो भी तपस्या कर रहे हैं और उन्होंने तपस्या करके मुझसे दो चीज मांगी है। एक चीज ये कि वो सारे देवी देवताओं पे विजय प्राप्त करे और दूसरी चीज ये कि उनका विवाह तुम्हारे साथ हो। तो मैं तुम्हें ये सुझाव दूंगा, लॉर्ड ब्रह्मा कहते हैं तुलसी महारानी को, कि फिलहाल तुम इससे शादी कर लो और जब तुम अपनी ये लीला कंप्लीट कर लोगी मटेरियल वर्ल्ड में, जब तुम वैकुंठ जाओगी, तब तुम्हारी शादी विष्णु से होगी, इसका मैं वादा करता हूँ। तुलसी महारानी बहुत अच्छी डिवोटी थी, इसीलिए उन्होंने ये बात जैसे लॉर्ड ब्रह्मा ने कही वैसे मान ली। फिर उनकी शादी हो जाती है शंखचूड़ से। शंखचूड़ एक राक्षस होते हैं, उन्होंने भी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग तपस्या की हुई होती है। अब मैंने जो कथाएं सुनी थी उसमें दो अलग अलग बातें थी जो मैं दोनों आप लोगों को बताऊंगी। छोटी सी ही डिफरेंस है कि जब उन्होंने तपस्या की थी, लॉर्ड ब्रह्मा से ये दो वरदान मांगे थे कि एक तो वो सारे देवी देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करे और दूसरा कि उनका तुलसी महारानी के संग विवाह हो। तो उस वक्त लॉर्ड ब्रह्मा ने उनको एक एम्युलेट यानी बड़ा सा पेंडेंट दिया था। कहीं कहीं कथाओं में कहा है कि उनको एक बड़ा सा कवच दिया था और कहा था कि ये तुम्हें पहने रखना है, या कवच या एमुलेट, कि ये तुम्हें पहने रखना है और कभी नहीं उतारना है। और इस सेकंड पावर तुम्हारा ये रहेगा कि तुम्हारी वाइफ की जो चेस्टिटी रहेगी उससे तुम्हें स्ट्रेंथ मिलेगी। जितनी वो पवित्र रहेगी उतनी तुम्हारी ताकत रहेगी। वो एमुलेट पहनने, वो पेंडेंट पहनने या कवच पहनने के बाद में ना ही तो वो कभी मर सकते हैं, ना ही कभी वो हार सकते हैं और ना ही कभी वो बूढ़े हो सकते हैं। ऐसा उनको वो वरदान उन्होंने उस एमुलेट के लिए लिया हुआ था कि वो जब तक वो पहने रहेंगे तब तक उनके साथ ये होगा। तो शंखचूड़ की शादी हो चुकी थी सॉरी तुलसी महारानी के साथ में, और अब वो सारे देवी देवताओं के संग युद्ध में थे और वो युद्ध में सबको परास्त किए जा रहे थे और सारे देवी देवता बहुत भयभीत थे। तो वो शिव जी के पास जा पहुंचे और शिव जी के सामने रुदान किया कि हमसे ये नहीं संभल रहा, आप कुछ करें। शिव जी स्वयं शंखचूड़ के पास आते हैं, उनसे बात करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो बिल्कुल नहीं मानते हैं। तब फिर शिव जी ही उनके खिलाफ एक युद्ध छेड़ देते हैं। जब उनसे घनघोर युद्ध कर रहे होते हैं तब आकाशवाणी होती है और उसमें कहा जाता है कि जब तक इसके पास ये कवच है और जब तक इसकी वाइफ जो इनकी पत्नी है वो पवित्र है, तब तक इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर से सारे देवी देवता संगठित होते हैं और प्लान बनाते हैं। तो उसमें वो सबसे पहले लॉर्ड विष्णु के पास जाते हैं। तो विष्णु कहते हैं मैं खुद ही सब कुछ देख लूंगा। तो सबसे पहले लॉर्ड विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेते हैं। बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर वो शंखचूड़ के पास जाते हैं और शंखचूड़ से वो एम्युलेट या कवच मांगते हैं। और शंखचूड़ बिना मतलब तर्क वितर्क किए वो उनको तुरंत दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि वो बहुत अच्छे डिवोटी रहे हुए हैं, वो सुदामा है। इस जन्म में वो शंखचूड़ है पर पहले वो सुदामा थे और उनको बहुत भरोसा था कि तुलसी महारानी की पवित्रता, चैस्टिटी हमेशा कायम रहेगी, तो वो एनीवेज उनको हराना मुश्किल नहीं है, तो वो दे देते हैं उन्हें। तो आउट ऑफ टू कंडीशंस वन इज मेट। अब विष्णु भगवान अ, शंखचूड़ का अवतार लेते हैं, उसके रूप में आ जाते हैं और फिर महल में जाते हैं। महल में जाने के बाद वो उन्हें कहते हैं कि आज हमने युद्ध जीत लिया। तुलसी महारानी कहती है तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब शिव जी के साथ में युद्ध जीतना कोई छोटी या मामूली बात नहीं है, तो बहुत बड़ा काम किए हैं। फिर उनको पानी देते हैं, खाना देते हैं, भोजन देते हैं और फिर उन लोगों का सहयोग होता है, जिसकी वजह से तुलसी महारानी की चेस्टिटी यानी पवित्रता टूट जाती है, भंग होती है। पर वो तुरंत रियलाइज कर लेती है और वो गुस्से में आके पूछती है कि कौन हो तुम मेरे पति नहीं हो। तब वो अपने रियल रूप में आ जाते हैं, विष्णु फॉर्म में। विष्णु फॉर्म को, इतने सुंदर फॉर्म को जब तुलसी महारानी देखती है तो एक्सटेसी में वो फिर से फेंट हो जाती है। और फिर जब वो उठती है और वो देखती है कि विष्णु भगवान थे और ना कि उनके हस्बैंड शंखचूड़ थे, तो वो क्रोधित हो जाती है क्योंकि उन्होंने उनकी पवित्रता भंग की। और उस क्रोध में आके वो उनको श्राप देती है, कर्स करती है
कहती है कि तुम्हारा दिल पत्थर का है, तो तुम जाओ एक पत्थर ही बन जाओ। तो विष्णु भगवान चाहें तो ये एक्सेप्ट करें, ना चाहे तो ना एक्सेप्ट करें, पर वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ, मैं पत्थर बन जाऊंगा। और तुम भी मेरी अब एक बात सुनो, जब तुम ये शरीर छोड़ोगी, जब तुम शरीर छोड़ोगी तो तुम्हारा शरीर गंडकी रिवर में बन जाएगा। और जो तुम्हारे केश है, जो तुम्हारे बाल है, ये सारे बाल, प्रति बाल मतलब एक बाल इज इक्वल टू वन तुलसी प्लांट। तुम्हारे सारे बालों से तुलसी के प्लांट्स सब जगह हो जाएंगे। और तुम्हारे किनारे पे, तुम्हारे तट पे मैं पाया जाऊंगा शालिग्राम रूप में। तो मैं पत्थर फॉर्म में वहां पे तुम्हें मिलूंगा। और विष्णु भगवान ये बताते हैं और उनको अपनी पास्ट लाइफ के बारे में भी बताते हैं कि वो वृंदा देवी है और वो गोलोक वृंदावन से आई है। और उनका होल मकसद क्या था इसके पीछे करने का, कि ये सारी डिवाइन चीजें जो ऑलरेडी डिसाइडेड थी वो एग्जीक्यूट हो जाए इस प्रकार। इसीलिए उन्होंने ये छल किया था। एंड फाइनली उनकी गंडकी रिवर पे जो हमें शालिग्राम शिलाएं मिलती है, उनकी और तुलसी महारानी का विवाह अभी हम देखते हैं कलयुग में, हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं, उसका उत्साह मनाते हैं। उस वक्त शिव जी ने कहा था कि तुम इतनी पवित्र हो। द होल पॉइंट वाज नॉट टू स्पॉइल योर चेस्टिटी, द होल पॉइंट वाज टू कंडक्ट दिस लीला वेरी नाइसली। उन्होंने कहा था कि अगर कोई मुझे 1000 हनी से मतलब शहद से भरे हुए पात्र चढ़ाए, दैट इज इक्वल टू 1 लीफ ऑफ तुलसी प्लांट, मतलब उसमें और एक एक पत्ते ऑफ तुलसी प्लांट में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर उन्होंने कहा था कि जब तुम अपनी बॉडी छोड़ दोगी और एक पानी में बन जाओगी, तब तुम मेरे पास वापस से वैकुंठ लोक में आ जाओगी और मेरी धर्म पत्नी बन के वहां पर रहोगी। So when I was listening to all these lectures, I also heard to a lot of glories of Tulsi Maharani. I would really like to go over this. कहते हैं कि अगर हर दिन आप तुलसी महारानी का एक पत्ता श्री कृष्ण के पद कमलों में रखते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 1 लाख अश्वमेध यज्ञ। तो आप देखिए, अगर आप 365 डेज रोज अगर कृष्ण के चरणों में एक तुलसी का पत्ता देते हैं, तो दैट इज इक्वल टू, मैथ मेरी इतनी अच्छी नहीं है, 365 इंटू 1 लाख अश्वमेध यज्ञ। इसके ऊपर मेरे को काफी सारी लीलाएं हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगी। तो सबसे पहली स्टोरी सत्यभामा की है। तो सत्यभामा एक बार नारद मुनि के साथ वार्तालाप कर रही थी और कह रही थी कि मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे कृष्ण एज पति स्वरूप में मिले इस जन्म में। मैं चाहती हूँ कि हर हर जन्म में कृष्ण ही मेरे पति रहें और ये कभी भी मुझसे नहीं छीना जाए और मैं हमेशा इनके साथ रहूं। तो नारद मुनि उन्हें कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर जब हम कुछ चाहिए होता है हमें अगले जन्म में, तो हम लोग उसके लिए दान करते हैं इस जन्म में। तो सत्यभामा कहती है हाँ हाँ प्लीज मुझे बताएं, जरूर बताएं कि मैं क्या दान करूं। तो कहते हैं जो तुम्हारी सबसे बहुमूल्य चीज है वो लाओ, दान करो। तो वो अंदर जाते हैं, अपनी तिजोरी में से काफी सबसे बहुमूल्य जो भी स्टोन या हीरे जो भी होते हैं वो लेकर आते हैं। नारद मुनि कहते हैं क्या बस यही तुम्हारे जीवन में सबसे बहुमूल्य है? तो कहती है नहीं नहीं, सबसे बहुमूल्य तो मेरे कृष्णा है मेरे लिए। तो वो कहते तो फिर उन्हें दान करो अगर उन्हें पाना चाहती हो अगले जन्म में। तो इम्पल्सिव नेचर में आकर सत्यभामा कहती है हाँ ठीक है, मैं उन्हें दान करती हूँ। तो नारद मुनि उनसे एक मंत्र बुलवाते हैं, वो तुरंत कह देती है। फिर बाद में वहां पे जब कृष्ण आते हैं, तो नारद मुनि उनको लेके चल पड़ते हैं। सत्यभामा पूछते हैं ये क्या कर रहे हैं, मेरे कृष्ण को कहाँ ले जा रहे हैं? तो कहते हैं कि आपने अभी अभी तो दान किया है इन्हें, तो मैं ले जा रहा हूँ अपने साथ, अब मेरी हो गई ये चीज। तो बोले नहीं, ये मैं नहीं करना चाहती थी, आप कृष्ण के बिना मैं जी नहीं सकती। वो खूब गिड़गिड़ाती है, रोती है। तो वो नारद मुनि मान जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है आप एक काम करें, इनके वजन का जितना भी धन मुझे दे सकते हैं दे दे, मैं वो ले लूंगा। तो फिर कृष्ण को तराजू जो होता है ना, जिस हम इंडिया में देखे होंगे, तो उससे तोलने वाली चीज पे बिठाया जाता है। एक तरफ कृष्ण होते हैं, एक तरफ खाली होता है। तो वो अपने घर से ला ला के सारे हीरे जवाहरात अपना पूरा महल खाली कर देते हैं, तब भी कृष्ण का वजन एक आउंस भी नहीं हिलता। बड़ी टेंशन में आ जाती है वो, सारी 16,108 क्वींस को बुलाती है कृष्ण के और उनको कहती है चले चले, बहुत
दुविधा में, ये तो हिल ही नहीं रहा है तराजू। उन्होंने सब लोग अपने महल खाली कर देते, कुछ नहीं बचता उस महल में। पर तब तक कृष्ण का मतलब वो वेइंग स्केल जो है वो 1 आउंस भी नहीं ऊपर उठता है। बहुत टेंशन में आने के बाद वो रुक्मिणी से सलाह करते हैं कि क्या करें, ये तो कृष्ण को ले जाएँगे। तो फिर तुलसी महारानी सॉरी रुक्मिणी देवी तुलसी महारानी का एक पत्ता लेकर आती है और जहाँ पे जो धन रख रहे होते हैं वहां पर वो रखती है, और तो कृष्ण का तराजू एकदम बैलेंस परफेक्टली हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली आचार्यगण हम लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कृष्ण को तुलसी महारानी कितनी प्रिय है, क्योंकि वो उनकी कितनी अच्छी डिवोटी है। तो जैसे ही वो सामने आई सिर्फ एक पत्ता, तो उनका वजन का भार अपने आप उनके सामने कम हो जाता है। वैसे ही अगर हम लोग देखें, अभी नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सत्यभामा, तो अभी हम लोग थोड़ा वृंदावन की तरफ रुख करते हैं। तो वृंदावन में अगर हम देखें तो हम गोवर्धन लीला हम सब लोगों को पता है। तो कृष्ण ने सारे वृंदावन वासियों को समझाया कि हम लोगों को इंद्र की नहीं गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो सब लोगों ने जो 3-4 दिनों से मेहनत करके अपना जो खाना बनाया था, कृष्ण ने कहा चलो चलो हम लोग अब चढ़ाएंगे ये गोवर्धन पर्वत को। सब लोग इकट्ठा करते हैं, खूब खाना इकट्ठा करते हैं कि एक ऐसे पहाड़ जैसा सा बन जाता है, और गोवर्धन पर्वत बहुत खुश होते हैं। वो एक ऐसे मुट्ठी लेते हैं, खाते हैं, सारा खाना खत्म, और फिर बोलते हैं अन्योर। अन्योर मतलब और लाओ। तो सारे जो वृंदावन वासी होते हैं वो एक दूसरे को देखते हैं कि अब क्या और लाओ, मतलब सब तो खा गए। तो फिर कृष्णा को पूछते हैं अब क्या करें। कृष्णा कहते हैं जाओ आपके घर में जो भी है सब कुछ लाओ भाई, हमें हमारे गोवर्धन पर्वत को खुश करना है। वो लाते हैं, फिर से ऑफर करते हैं, सारे घर खाली हो जाते हैं। वो एक निवाला लेते हैं और फिर बोलते हैं अन्योर और लाओ। तो वहाँ वृंदावन वासी बोलते हैं कृष्णा को, भाई इंद्र देवता तो थोड़ा सा ही खाते थे, ये तो बहुत खाते हैं, और ये तो अभी भी और मांग रहे हैं, अब क्या लाएं। कृष्णा कहते हैं और तो लाना होगा। तो वो बोल रहे प्रभु अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तो कुछ भी नहीं बचा, आसपास के गांव वालों ने भी खाना दे दिया। तो फिर वो बोलते हो तो यहाँ पे तो अत्याचार हो रहा है। तो फिर कृष्णा एक वहां पे किसी को निर्देश देते हैं कि तुलसी का पत्ता इनको ऑफर करें। तो तुलसी का पत्ता खाने के बाद में वो एकदम सेटिस्फाइड फील करते हैं। अब वो अनि और नहीं कहते और वो बहुत खुश रहते हैं। तो इस लीला से भी हम लोगों को समझ में आता है कि तुलसी महारानी की क्या ग्लोरीज है, कि सिर्फ उनको खाने मात्र से, उनका सेवन करने मात्र से गोवर्धन पर्वत जो कृष्ण के ही एक्सपेंशन है, वो कितने सेटिस्फाइड और संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वृंदावन वासियों को भी थोड़ा सा चैन आता है, क्योंकि अन्योर कर कर नहीं पा रहे थे। और फिर नाउ दैट वी आर इन वृंदावन, लेट्स डिस्कस वन मोर वृंदावन लीला। तो एक बार क्या हुआ, गोपीज वर सर्चिंग फॉर कृष्णा, और कृष्णा वन में कहाँ थे, किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, मिल नहीं रहे थे। थोड़ी देर ढूंढने के बाद में वो बड़ी बेचैन होने लगी। तब वो झाड़ों मतलब जो वृक्ष जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं से पूछने लगी। तो पुकारने लगी, ओ नीम तुम्हें पता है कृष्ण कहाँ है? ओ पीपल तुम्हें पता है वृक्ष कृष्ण कहाँ है? कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। ओ अशोका, ओ कदम्बा तुम जानते हो कृष्ण कहाँ है? कोई जवाब नहीं दे रहा है। सारी गोपियों को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा ये सारे मर्द हैं, अहंकार लेके बैठे हैं। हमारी तुलसी माँ कहाँ है, वो हमें बताएगी कि हमारे कृष्ण कहाँ है। तब उस टाइम पे वो लोग एक श्लोक रिसाइट करते हैं जो हमारे भागवतम में भी आता है, 10th कैंटो, द मोस्ट जूसीएस्ट कैंटो ऑफ ऑल द एंटायर भागवतम, 30th चैप्टर, 7th श्लोक। It goes, कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सहात्वली कुलेर्भिभ्रदृष्टास्ते अति प्रियो अच्युतया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है, ओ मोस्ट काइंड तुलसी, to whom the feet of Govinda are so dear, have you seen that infallible one walk by near wearing you and encircled by swarms of bees? मतलब वो कह रहे हैं कि तुलसी महारानी तुम जानते हो वो कृष्ण है कहाँ, जिसको वो जिसके चरणों में तुम हमेशा रहती हो, सारे टाइम वो तुम्हें धारण किए हुए रहते हैं, तो वो कृष्ण कहाँ गए? तो कहते हैं आचार्यगण से हम लोगों को समझाते हैं कि जब गोपियां और राधा रानी भी तुलसी महारानी के शरणागत होके पूछ रही है कि बताओ हमारे कृष्ण है कहाँ, तो वो कहते हैं तो हम तो कृष्ण से बहुत दूर है, हम तो एक्सट्रीमली सेपरेटेड है, तो हमें किसके पास जाना चाहिए?
After listening to this, I'm sure we all know the answer that where we should go if we want Krishna. ये जो श्लोक था, इसके अंदर था कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, चरण प्रिय। ये जो हमारी लक्ष्मी माँ है, लक्ष्मी माँ भी तुलसी देवी की आराधना करती है। वो कहती है उनको गोविंद चरण प्रिय नाम से ही अक्नॉलेज करती है, ऐसे ही उन्हें संबोधित करती है। और वो कहती है कि जब मुझे लोग पूजते हैं तो मैं अकेली स्वयं उनके पास जाती हूँ, पर जब लोग तुम्हें पूजते हैं, तुलसी महारानी को कह रहे हैं, तो तुम मेरे गोविंद को संग में लेकर जाती हो। मतलब उनके साथ में, तुम्हारे साथ में गोविंद भी जाते हैं। तो जब हमें हमारे गोविंद नहीं दिखाई देते हैं, हमारे कृष्ण नहीं दिखाई देते, तो हमें पता होता है वो किसी भक्त के पास है, तुम्हारे साथ। तो ये लीला सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा था, जब आचार्यगण ने हम लोगों को ये समझाया था कि जब सेपरेशन में गोपियां और राधा रानी विरह में बेसिकली तुलसी माता को सरेंडर करती है, तो हम लोगों को और किसको सरेंडर करना चाहिए, बिकॉज वी आर द मोस्ट सेपरेटेड पीपल फ्रॉम कृष्णा। तो now that we are here in Vrindavan, let's discuss one more लीला about it. एक बार गर्ग मुनि से एक गोपी थी जिनका नाम था चंद्रा नाना गोपी। चंद्रा नाना गोपी ने गर्ग मुनि से सारे वेदास सीखे थे एकदम विस्तार रूप में। तो जब वो सीख कर वापस आई थी, तो राधा रानी ने उन्हें पूछा कि तुमने इतना इंटेंसली सारे वेदास को इतना डीपली सीखा, तो कुछ मुझे भी बताओ संक्षेप में, मतलब थोड़ा सा समराइज करके मुझे भी सिखाओ। तो चंद्रा नाना गोपी ने कहा कि अगर आपको सिर्फ संक्षेप में जानना है, यू वांट टू नो द कंक्लूजन, यू वांट टू नो द जेस्ट ऑफ द एंटायर कॉन्वर्सेशन, तो बात बस इतनी है कि अगर आप चाहते हो कि आपको कृष्ण की प्राप्ति हो, तो उसके लिए आपको देनी होगी प्रेममय भक्ति, यानी लविंग डिवोशनल सर्विसेज टू कृष्णा। और वो लविंग डिवोशनल सर्विसेज देने के लिए आपको सबसे पहले सेवा करनी होगी तुलसी महारानी की। उसके बाद में ही आप वो नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं। तो जब तुलसी महारानी सॉरी राधा रानी जब ये बात सुनती है, तो वो कहती है कि कृष्ण प्रेम तो मुझे मेरी जिंदगी में चाहिए ही चाहिए, तो मैं भी तुलसी महारानी की पूजा करूंगी। तो वो 6 मंथ्स तक सिंसियरली रोज दिया ऑफर करती है, प्रदक्षिणा करती है। हम रोज सुबह प्रदक्षिणा करते होंगे, प्रदक्षिणा पदे पदे, तो वो करती है, कीर्तन करती है, सारी सेवा करती है तुलसी महारानी की। और 6 मंथ्स के बाद में जब तुलसी महारानी बहुत प्रसन्न हो जाती है, तब वो वहां पे उनके सामने आती है। एंड नाउ जस्ट टू माइंड एवरीबॉडी, सब लोगों को पता होना चाहिए कि राधा रानी इस भक्त चूड़ामणि, वो सबसे बड़ी डिवोटी है, उनसे बड़े कोई डिवोटी नहीं है। पर ये लीला इसीलिए की गई जैसे हम लोग सीख सके कि हम लोगों को किस मार्ग पे चलना है। तो तुलसी महारानी उनके सामने आती है और उनको कहती है कि तुमको मुझसे जो मांगना है तुम मांगो। तो राधा रानी कहती है कि मुझे सिर्फ कृष्ण प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। एंड तुलसी महारानी बड़ी मर्सीफुल है, तो बोलती मेरे मेरे दिल में जितना भी कृष्ण प्रेम है वो सब तुम्हें मिले, ये वरदान मैं तुम्हें देती हूँ। और वो इतनी खुश होती है राधा रानी से कि वो ये कहती है कि मेरा नाम वृंदा है, और इसीलिए वृंदा जो मेरा नाम है, मैं इतनी खुश हूं कि तुम मेरा नाम भी ले लो। तो हम लोग रोज, अभी हम लोगों ने प्रयास किया, तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा तप्त कांचना गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। ये श्लोक हम राधा रानी के लिए पढ़ते हैं। अब वृंदा देवी ने अपना नाम भी राधा रानी को दे दिया। वो इतनी खुश, इतनी मर्सीफुल है, इतनी खुश हुई थी वो, इसीलिए राधा रानी इज नोन एज वृंदावनेश्वरी। आप देखिए जिस वन में, जिस फॉरेस्ट में कृष्ण राधा कृष्ण की जो लीलाएं होती थी, इट इज नॉट कॉल्ड एज राधा वन और कृष्ण वन और राधा कृष्ण वन, इट इज कॉल्ड एज वृंदावन। बट दैट नेम इज ऑल्सो बाय राधा वृंदा देवीज मर्सी गिवन टू राधा रानी। फिर after we have seen so much of leelas in Vrindavan, let's go to Ramayan. Let's go in a previous युग। तो रामायण में आचार्यगण हमें समझाते हैं कि जब सीता मैया का हरण हो गया था, रावण उनको ले गए थे,
तब राम फॉरेस्ट में, जंगल में यहाँ वहां भटक रहे थे एंड पुकार लगा रहे थे सीता माता के नाम की, सीते सीते सीते, ही कुड नॉट फाइंड। एंड वो एकदम सरेंडर होके पूछते, तुलसी तुलसी महारानी तुम जानती होगी कहाँ है मेरी सीते, तुम बता दो मुझे मेरी सीते कहाँ है। तो ये एपिसोड को हम नेक्स्ट युग, द्वापर युग के साथ भी कंपेयर करते हैं कि जितनी भी बार राधा रानी और कृष्ण विरह में होते थे, सेपरेशन में होते थे, तब वो सबसे पहले तुलसी महारानी का शेल्टर लेते थे, उनके शरण में आते थे। सिमिलरली श्री रामचंद्र भी जब सीता माता जी से सेपरेट हुए तो सबसे पहले वो तुलसी महारानी के शरण में, शेल्टर में आए कि हेल्प हेल्प करें हमारी। मैं 1 सेकंड के लिए वीडियो ऑन करती हूँ। आप सब लोगों को पता है कि हम लोग टीका कैसे लगाते हैं, हमारा तिलक कैसा होता है। तो हम लोग बेसिक ये जो तिलक होता है, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है, दिस इज द पद कमल, दिस इज द फुट इम्प्रिंट ऑफ श्री कृष्णा। और ये जो पार्ट होता है, ये हमारा तुलसी का पत्ता होता है। हमारे कुछ आचार्यों ने हम लोगों को ये भी समझाया है कि जैसे ये लाइन जो होती है, ये राधा रानी है, ये लाइन जो होती है, ये कृष्ण भगवान है। और ये लोग हमेशा मिल नहीं पाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है मिलने में। पर जब वो लोग यहाँ पर आते हैं, तब बिकॉज ऑफ वृंदा देवी यानी तुलसी महारानी की मर्सी होती है, तभी वो लोग यहाँ पे आके मिल पाते हैं। अदरवाइज आप ये देखेंगे, ये पैरेलल लाइंस है, ये लोग मिल नहीं पाते। तो ये मुझे एनालॉजी बहुत पसंद आई थी, इसलिए आई एम ट्राइंग टू शेयर दिस। सो बेसिक कंक्लूजन इज के वृंदा देवी, तुलसी महारानी इज वेरी 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 मर्सीफुल। फिर हम लोग हमारे भागवत गीता के पन्नों में आते हैं, 9.26, हम सब लोगों को पता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो इसमें हमारे आचार्यगण हम लोग को समझाते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसे ही कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ही ऐसे ही क्यों कहा, ऐसे क्यों नहीं कहा पुष्पम फलम तोयम पत्रम, कुछ अलग क्यों नहीं कहा। फर्स्ट प्रेफरेंस उन्होंने पत्ते को दी है, तुलसी महारानी की लीफ को दी है। वैसे ही हम लोगों को समझना चाहिए कि तुलसी महारानी इज सो सो मच इम्पोर्टेंट टू मूव अहेड इन योर भक्ति, इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। एक आज मैंने सुना पहले अमृत प्रभु के लेक्चर में, उसके बाद में मैंने रेफर किया श्रीमद् भागवतम में 5th कैंटो 3rd चैप्टर 6th जो श्लोक है, वो श्लोक मुझे नहीं पढ़ना आता, पर उसके जो पर्पट है, उसके अंदर एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा हुआ है। आई विल रीड इट आउट। तुलसी दल मात्रेण जलश्चाचुलुकेन वा विक्रीणीते स्वयं आत्मना भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। What this means? This means कृष्णा कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मेरे को तुलसी दल मात्रेण, मतलब सिर्फ एक तुलसी का पत्ता, एंड जलस्य चुलकेना, एक जल का बूंद, गंगा जल का एक बूंद भी अगर तुम मुझे अर्पित करते हो, तो विक्रीनेते स्वयं आत्मना, तुमको मैं अपने आप को बेचने को तैयार हूं, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूं। तो दिस श्लोक आई रियली रियली लव। अभी ये भागवतम, हम लोगों ने भगवत गीता देख ली, भागवतम देख ली। अब वी विल गो अहेड एंड वी विल गो टू चैतन्य चरितामृत, कि वहां पे भी वृंदा देवी, तुलसी महारानी का किस प्रकार से वर्णन है। सो एक समय था, एक टाइम था where there was absolutely no devotion, बिल्कुल डिवोशन बची ही नहीं थी। एंड ये सब देख के अद्वैत आचार्य बहुत ही मतलब अनईजी थे कि ये क्या हो रहा है इस वर्ल्ड में। लोग जो कर रहे थे वो सिर्फ तर्क वितर्क कर रहे थे, मतलब मैं महान, तुम महान, मैं महान, बट देयर वाज नो गॉड कॉन्शियसनेस। सो अद्वैत आचार्य यही श्लोक पढ़ते हैं। ये श्लोक बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं इसको फिर से पढ़ूंगी, जैसे हम सब लोग इसके ऊपर थोड़ा सा मेडिटेशन कर सके। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा विक्रीणीते स्वयं आत्मना भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। तो अद्वैत आचार्य जब ये श्लोक पढ़ते हैं, तो उनको पता है कि अब मुझे क्या करना है। तो वो तुलसी का पत्ता लेते हैं, हाथ में पानी लेते हैं, और कृष्ण को अर्पण करते हुए जोर जोर से ये श्लोक गाते हैं और पुकार लगाते हैं कि अब आप आए, आपके आने की बहुत जरूरत है, बहुत दरकार है यहाँ पर। तो फिर उसके बाद में हम सबको पता है, कृष्ण कम्स इन द फॉर्म ऑफ चैतन्य महाप्रभु। और जब वो वहां पे थे, तो अक्सर कई बार
चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा था कि मैं तो बहुत खुश था अपने वैकुंठ लोकों में अपने भक्तों के साथ में, पर मुझे यहाँ पे आना पड़ा इस आदमी के वजह से। He used to point at Advaitacharya because he took Tulsi and Ganga Jal in his hand and he called me. And what to do? Because he did that, I had to come. मैं क्या करूं, उन्होंने तुलसी हाथ में ले ली तो मुझे आना ही पड़ा. So we have one more reference कि तुलसी महारानी की क्या glories है from Chaitanya Charitamrita also. Now that we are in Chaitanya Charitamrita, let's discuss one more. We all know the story of Thakur Haridas. Thakur Haridas was such a great Vaishnava. वो एक दिन में 3 लाख नाम chant करते थे. एक 21 hours he used to keep chanting. 21-22 hours वो सिर्फ chant करते थे, क्योंकि 3 लाख नाम अगर आप लेंगे तो इतना समय लगेगा ही. मुझ जैसे व्यक्ति को मैं अपनी बात करूंगी, 25,000 नाम लेती हूँ मैं और पूरा दिन निकल जाता है 24 घंटे, फिर भी मुश्किलों पूरा कर पाती हूँ. बट ठाकुर हरिदास used to do 3 lakh names in one day. तो एक बार उनका नाम खराब करने के हिसाब से, हम सबको ये स्टोरी पता है तो मैं शॉर्ट में इसके ऊपर से जाऊंगी. उनका नाम खराब करने के लिए उन्होंने लोगों ने प्रोस्टिट्यूट को हायर किया और कहा कि इनके पास आप जाएं. तो वो माता जी उनके पास आती है और बोलती है अपना उनके मन में क्या है इच्छा वो व्यक्त करती है कि आप भी जवान हैं, हम भी जवान हैं और रात भी जवान है, तो व्हाई नॉट. तो ठाकुर हरिदास बहुत ही ही इज अ वेरी गुड डिवोटी, बहुत ही विनम्रता से कहते हैं आपकी जो इच्छा माता जी वो हम पूरी करेंगे, बट प्लीज फर्स्ट लेट मी कंप्लीट माई राउंड्स. आप यहाँ पे तुलसी के बगल में बैठे, यहाँ पे मुझे सुने, जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं आपकी डिजायर्स पूरी करूंगा. पर अब अगर आपको 3 लाख नाम लेने हैं तो 1 घंटे में 2 घंटे में तो होना नहीं है, पूरी रात निकल जाती है. तो थोड़ा सा एम्बैरस फील करती है वो माता जी और फिर वो वापस से चली जाती है. फिर दूसरे दिन आती है और कहती है देखो आपने मुझसे छल किया, कपट किया, आपने कहा था आप मेरी डिजायर्स पूरी करेंगे. तो वो बोलते हैं आई एम सॉरी, नहीं कर पाया, आई नो गलत हो गया, पर मैं आज कोशिश करूंगा, पर पहले मैं अपने नाम लूंगा. आप प्लीज यहाँ पे तुलसी महारानी के बगल में बैठे मुझे सुने, जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं आपकी डिजायर पूरी करूंगा. ऐसे करते करते 3 दिन हो जाते हैं, 3-4 दिन हो जाते हैं. तो लास्ट में वो खुद माता जी एक दिन आती है. सबसे पहले वो आती है, तुलसी महारानी को दंडवत प्रणाम करती है, फिर उनके बाजू में बैठ के बोलती है जो मैं कर रही थी वो बहुत गलत है, जो मैं कर रही थी वो मुझे नहीं करना चाहिए, ये रियलाइजेशन मुझे हो गई है, पर अब मैं क्या करूं. तो if Atul Prabhu or Mata ji, anybody is here who can help me with the shlok from Chaitanya Charitamrita, I am not able to get the tune. Nirantara naam lao. Anybody can help me with the tune? If not, it's okay. Anand Kishori will help her. Mataji, can you share the shloka? Mataji, I have written it down. It is Nirantara naam lao kara tulsi sevana. Okay, 1 second. I will look it up real quick. Mataji, first of all, very beautiful class. Thank you so much. This is mesmerized. Thank you. I'll just. You did so much hard work and you presented so beautifully. Yeah, so many wonderful references. Prabhuji, I'm just like listening and just like telling. I don't know much. Very, Thank you, Mataji, for very sharing. nicely you heard and presented. Mataji, Nirantara, what is the next? Nirantara naam lao kara tulsi sevana achirat pabitoy krishnera charana. I'm not able to, I don't know that tune. I've practiced, but I still keep forgetting. I'm so sorry. Very small buddhi. I can try to recite, Mataji. Please, Mataji. Nirantara namalao कर तुलसी सेवाना अचिरात पाबे तबे कृष्णेर चरण. Yes, Mataji. So that prostitute Mataji asks Haridas Thakur, now what to do? I have realized my mistake. How should I move ahead? And this is what Haridas Thakur tells her. He tells her, Nirantara namalao karo tulsi sevana. We have to listen to this term and emphasize on this, that we have to do karo tulsi sevana achirata pabetoy krishnera charana. That's only when we will get the lotus feet of Shri Krishna.
So this is the instruction that Haridas Thakur gives to that prostitute, Mataji. So this also we see from coming from Chaitanya Charitamrita. Then let's go back to Vrindavan. So when Krishna, everybody had completed their Leela, but we all must have heard about Rasa Khan. I had heard about him, about a couple of his poetries, but this time it was even better. So Rasa Khan was a very great, very nice devotee, amazing devotee, very, very surrendered to Lord Krishna and the Dham of Vrindavan. So he was, now that you know the name Rasa Khan, he was Muslim by birth. But that just did not matter to him. Like you see Thakur Haridas, it just did not matter. Doing Krishna Bhakti is the prime goal of our life, and they followed it. So he used to wear 20 Kantimalas. We wear one. Most of the people wear one, like one, they either circle it around their neck or just wear one single like me or whatever. But he used to wear 20. So he used to wear several around his neck, on both his arms, on his head, like forehead. So one day some king, a Muslim king, comes to him and asks him, what are you doing? You are just spoiling the name of our community. You are a Muslim fellow. उन्होंने पूछते हैं कि अल्लाह कम पड़ गए थे. So he does not reply. And he's like, कंठी माला तुमको पहननी है पहनो. लोग एक एक पहनते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 पहन लेते, तुम 20-20 डाले हुए हो. तब वो उसका उत्तर देते हैं, बहुत अच्छा उत्तर देते हैं. वो कहते हैं कि मेरा जो हृदय है वो पत्थर से बना है, और ये जो कंठी माला है ये पट्टा है. ये पट्टा जब मेरे गले में पड़ेगा, फिर कोई मुझे से खींचेगा, मतलब टानेगा, तभी मुझे हिला सकते. पर मेरा जो पत्थर का दिल है, इसको टानने के लिए कम से कम 20 कंठी माला लगेगी. तो ये तुलसी महारानी ही है जो मुझे वापस से कृष्ण के पास लेकर जाएगी. ये उस वक्त वो अपने जो राजा होते हैं उनको ये कहते हैं. तो यू सी के कंठी माला हैज सो मच इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में. हम लोग मैंने कंठी माला कुछ पिछले 3-4 सालों में ही पहननी शुरू की. उससे पहले मैं पहनती नहीं थी. सच्ची बात बताऊं, इट वाज लाइक, ओ, इट डज नॉट गो विथ माय फैशन. सच अ सूक्ष्म, सच अ नीच छोटी बुद्धि. तो कंठी माला का भी एक अपना अतुल्य ग्लोरीज है, उनकी भी बहुत उत्तम ग्लोरीज है. उसमें से कुछ कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी जो हमारे शास्त्रों में लिखी है. इट इज नॉट मैन मेड. उसने कहा है कि एनीबडी हु इज वेयरिंग तुलसी माला, जो तुलसी माला पहने हैं, अगर गलती से किसी भक्त ने बिना ऑफर किया हुआ फूड भी खा लिया, तो तुलसी महारानी में इतनी मर्सी है कि वो हर निवाले के साथ में, व्हेन यू क्रॉस दैट लाइन ऑफ अवर तुलसी माला, जब वो हमारे गले के नीचे जाता है खाना, वो हर निवाले के साथ में बैठ के जाती है. कृष्ण को कहती है, चिंता मत करो, ये आपका ही प्रसाद ही है, डोंट वरी, मैं हूँ इनके साथ में. शी इज दैट मर्सीफुल. अगर हम कंठी माला ही नहीं पहनते हैं, तब फिर हम चाहे कुछ भी खाना खाएं, प्रसाद की बात नहीं हो रही, प्रसाद प्रसाद होता है, पर हम लोग जो भी खाना खाएं उसके कंपैरिजन किया गया है विथ एक्सट्रैक्ट ऑफ एनिमल. अब ये जब समझा रहे थे प्रभु, तब बड़ा ही आपको घृणा होगी. एक्सट्रैक्ट ऑफ एनिमल जब हम लोग कहते हैं, तो हम गाय का गोबर नहीं कह रहे हैं, हम यही चीज कुत्ते की कह रहे हैं. तो इतना खराब वर्णन दिया गया है कि अगर आप कंठी माला नहीं पहनते और उस गले के नीचे जब खाना जाता है, तो उसको उस रूप में माना जाता है. अगर आप पानी पीते हैं और अगर आपने कंठी माला नहीं पहनी हुई है, तो इट इज एज गुड एज अल्कोहल, दारू जो हम कहते हैं, उसके समान है. तो अगर आप कंठी माला पहने हुए व्यक्ति हैं और अगर आप दिन में एक बार स्नान करते हैं, एक बार नहाते हैं, तो इट इज एज गुड एज टेकिंग bath in all the holy waters like यमुना, गंगा, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी. इन सब में एक बार में ही आपने स्नान कर लिया, उतना पुण्य आपको मिलता है सिर्फ कंठी माला पहनने से. अगर आप दिन में 2 बारी नहाते हैं, तो आप सोचिए यही पुण्य आपको एक ही दिन में 2 बारी मिल रहा होता है. पर वही कहते हैं कि अगर आप नहाते हैं बिना वस्त्रों के, पर आपके गले में अगर कंठी माला है, तब भी आप बिना वस्त्र के नहीं माने जाते हैं. और अगर आप कुछ पहन के भी नहाए और अगर आपने कंठी माला नहीं पहनी है, तब भी आपको बिना वस्त्र के माना जाता है. फिर एक लास्ट, एक और छोटी सी कथा है. I'll try to wind it up quickly. तो there was a boy. एक गांव था, उसमें एक छोटा बच्चा था. छोटा बच्चा अनाथ था. मम्मी पापा भाई बहन पड़ोस अड़ोस कुछ भी नहीं थे. उनके पास कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए. कुछ नहीं था. जब हम कहते हैं कुछ नहीं, तो आप इमेजिन करें, खाना पीना कपड़ा सोना
घर कुछ नहीं, वो जंगल में रहते थे। जंगल में रहते थे तो जब बहुत गर्मी होती थी तो पसीने में एकदम हालत खराब हो रही होती थी, पूरा शरीर जल रहा होता था। जब ठंड पड़ती थी तो कपकपा रहे होते थे, पत्तों का सहारा लेने की कोशिश करते थे पर पत्तों से क्या ही होगा। और सिर्फ एक चीज बोलते थे, क्योंकि उनको किसी ने कही थी, तो वो सिर्फ एक चीज कहते थे, राम 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 राम। बस कपकपाते थे रात को और राम 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 करते थे। उस जंगल के बाहर सामने एक छोटा मंदिर था जिसमें सीताराम जी की डीपीज थी। तो उसमें से एक दिन श्री रामचंद्र वो छोटी सी डीटी फॉर्म चलकर आती है और उनको हग करती है और सो जाती है उनके साथ में, क्योंकि वो इतने कांप रहे होते हैं ठंड में और कॉन्स्टेंटली राम 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 कह रहे होते हैं। तो जब वो आते हैं तो उनको हग करके सो जाते हैं। तो जब वो सुबह उठते हैं, आंख खोलते हैं, अच्छे से गरम गरम उठते हैं, एकदम आंख खोलते हैं, तो देखते हैं कि ये छोटी सी डीटी मेरे हाथ में कहाँ से आई, कौन रखा। तो गांव वालों में तब तक ऑलरेडी हाहाकार मच चुका होता है कि भाई हमारी श्री रामचंद्र की डीटी गई कहाँ। तो वो लोग जा देखते हैं तो वो छोटे बच्चे के पास में होती है। तब लोग और गुस्सा करते हैं कि अनाथ तो था ही, अब ये चोर भी बन गया है, ना ही इस इंसान का कोई नाम था और अब ये चोर है। तो सब लोग उसके ऊपर बहुत आरोप लगाते हैं और वो बहुत नतमस्तक होकर सबको कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो डीटी भी पहली बार देखी, मैं तो मंदिर भी नहीं आया हूँ कभी, मेरे को कुछ नहीं पता। कोई उसकी बात नहीं मानता है। तो वहीं पे जंगल में एक आश्रम भी होता है जहाँ पे एक साधु रहते हैं। तो वो छोटा सा जो बच्चा होता है वो उनके शरण में जाके बोलता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है ऑनेस्टली, पर ये सब लोग मुझे ऐसे कह रहे हैं, मैंने कोई चोरी नहीं। तो उसकी इनोसेंस के ऊपर वो साधु को बहुत दया आती है और बोलते है कि ठीक है, इसको मैं अपने शरण में लेता हूँ, ये आज से मेरे आश्रम में रहेगा, इसने नहीं चोरी की है, इसे माफ कर दे। गाँव वाले चले जाते हैं। अब इसको पूछते तुम्हारा नाम क्या है, तो इसे नाम ही नहीं पता, क्योंकि पेरेंट्स थे ही नहीं, तो पेरेंट्स ने कोई नाम ही नहीं रखा। तो अ, तो उन्हें कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम मेरे पास यहाँ पे रहोगे। उनको भी इसके आचरण के बारे में कुछ नहीं पता होता है। तो कहते हैं तुम मेरे पास में रहो और मैं जो तुम्हें कहूँ वो काम तुम करो। ये जो तुलसी है यहाँ पे, इसकी रोज उठ के सेवा करो, पानी दो, दीप दो, प्रदक्षिणा करो। एंड ये काम तुम कम से कम 5 साल तक करोगे, उसके बाद में हम लोग देखेंगे। और वही छोटा बच्चा बड़ा होके तुलसीदास बनते हैं। तो तुलसीदास तो हम जानते हैं उन्होंने हमारे लिए क्या क्या लिखा है, हमारे लिए क्या क्या किया है। तो उनके ऊपर और ख्याति करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनका नाम ही काफी है, तुलसीदास। तो यहीं पे मैं ये सब जो भी मैंने कहा, आई विल लाइक टू वाइंड इट अप। आई माइट हैव मेड मिस्टेक्स, आई एम श्योर, आई टेंड टू मेक मिस्टेक्स, प्लीज फॉरगिव मी। एंड अगर कुछ अच्छा समझ में आया हो, कुछ अच्छा लगे, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ऑल द लेक्चर्स आई हैव हर्ड। मुझे खुद इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं था, इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाया। एंड आई एम ग्लैड कि अतुल प्रभु ने ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। वेरी नाइस, अमेजिंग। बहुत ही अच्छे से आपने प्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच, वी लर्न सो मच। हरे एनीबडी? कृष्णा। Hare Krishna Mataji, thank you so much for sharing such wonderful pastimes. We were able to really learn a lot. Thank you. Hare Krishna Mataji, I also Thank you, wanted to Mataji, so much. thank you so much for such a nice katha and so many pastimes you described so nicely, giving references. Thank you very much. Hari Bol. थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you, Raksha Mataji. So email Thank you, Wonderful Mataji. Thank lecture. you. Amazing, Was amazing lecture. 12:38 Hawaii time. Thank you very Thank much, you, Mataji. Mataji. You explained very well. 12:38. I will So have to much. listen to the recording because I didn't hear the whole thing. But the way you were presenting was amazing. Thank you so much. थैंक यू माता जी। Would you It's please all share the because of the recording soon? lectures, Mataji. You should hear to Amrendra Prabhu's lectures. They're very nectarian. You will get a But lot more out of it. I I know, can Mataji, share. but you condensed everything together so I can get the nectar all in one lecture. Mataji, I will also try to share all the links that I looked up to, so that whenever you all have time, you all can definitely go through it. Haribol.
Hare Krishna. So, Hare Krishna Raksha. Very detailed class. I like it. Thank you. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranam. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Mataji. And we'll definitely upload your class online on YouTube. So we can end it for today. We'll recite Hare Krishna 11 times and we can end. Hare Krishna, Hare